Hello dear students, so today we'll go through the questions of chapter trigonometry. So the first question which we are taking is, it's a very simple, very short answer type question. A triangle is given to you, triangle ABC is the name of that triangle, in which measurement of angle B is 90 degree, measurement of AB and BC is respectively 24 centimeter and 7 centimeter. And with the help of all these values, you have to find out two things. In question number 1, that is part 1, you have to find out the value of sin A and cos A. And in second section, part 2, you have to find out the value of sin C and cos C. So first of all, before starting this solution, what we have to do is that we have to draw a triangle. That is triangle ABC. This triangle ABC is 90 degree at angle B. So we'll draw this triangle like this, A, B, C, where angle B is 90 degree. This one is the sign which denotes that angle B is 90 degree. Now we'll mark the measurement of AB and BC in this given figure. AB, it is of measurement 24 centimeter and BC measurement 7 सेंटीमीटर. अब इन वैल्यूज की हेल्प से हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं दोनों. सो टेकिंग दिस पार्ट, फर्स्ट वन, in this first part we have to find out the value of sin A and cos A, right? But when we observe this figure, what we see here is one thing is missing, that is h. H is missing here. If h is missing here, it means we cannot find out the value of sin A and cos A, because as we know the formula for sin is P upon H and for cos it is B upon H. To find out these values, we must know the value of h here. So to find out the value of h, we can use Pythagoras theorem also if we want. Okay. So as you can see in this given figure, the value of h is missing. It means first of all we have to find out the value of hypotenuse. So here we are going to use one theorem, that is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. I am writing here the theorem also, that is h square is equal to p square plus b square, like this. So the value of, you can use small h also, no problem. H square is equal to p square. What is the value of p here? That is 24. AB is our perpendicular. 24 square plus the value of b, base. In this given figure, the base is 7. So square of 7. So h square will be, you have to find out the square of 24. For this, you can simply multiply 24 into 24 and will get 576. You can multiply it and find out the value. So it's 576, and when we evaluate the square of 7, you have to multiply 7 by 7 and that will be 49. Right? In this way, now h square is equal to, you have to add these two figures. So the addition of these two figures, 9 and 6, that is here 625 will be your total addition. Now ये जो square है, हम अगर उसे अदर साइड शिफ्ट करना चाहेंगे तो वो उधर साइड पर जाके स्क्वायर रूट का फॉर्म ले लेगा and it will become like this. H is equal to square root of 625. And when we see what is the square root of 625, when we multiply 25 by 25, we get 625. It means h, value of h will be 25. जब भी square root होता है, it means here it is 2 square root. कोई भी नंबर 2 के पेयर में होंगे और वो सेम नंबर होंगे तो वन टाइम वो बाहर आ जाएंगे और रूट आपका वेनिश हो जाएगा, वहां से हट जाएगा. सो वैल्यू ऑफ h विल बी 25. So this is the first step of our solution, where we got the value of h, which is equal to 25.
Now as we got the value of 25, we can move further and we can find out the value of these respective ratios. So moving to next step. Now here one thing you have to observe is that here we have to find out the value of sine A and cos A. It means the object is here. You have to observe from this angle, that is angle A. So the value of theta is placed here. And as you know in my first lecture I have told you, जब भी आपको value of P or B निकालना है तो ये angle कहाँ located है ये बहुत important होता है. अभी A angle जो है theta, that is it is located here. हम उसके opposite side देखेंगे तो जो भी quantity होगी वो P हो जाएगी और जो रेस्ट साइड होगा जो कि परपेंडिकुलर को होल्ड करे हुए होगा वो अदर वैल्यू हो जाएगी, दैट इज बी. सो इन दिस केस, फर्स्ट केस नंबर 1, हम यहां लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ पी, बी एंड एच. सेपरेटली हम लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. जब हम ए से ऑब्जर्व करते हैं तो वैल्यू ऑफ पी हो जाता है बी सी. जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहां से भी हम ऑब्जर्व करते हैं उसका जो ऑपोजिट साइड होता है वो P की वैल्यू को डिनोट करता है. A से ऑब्जर्व किया, ऑपोजिट साइड बन गया BC और वो P की वैल्यू हो गया, दैट इज 7 सेंटीमीटर. और जो 90 डिग्री को होल्ड किए हुए अदर साइड होता है, ये आपका 90 डिग्री है, 7 हमने यूज कर दिया. अदर साइड जो है वो हो गया हमारा B. द वैल्यू ऑफ B इज इन टर्म्स ऑफ नेम इट इज AB एंड इट्स वैल्यू इज 24 सेंटीमीटर. और H हमने अभी फाइंड आउट किया, H विल रिमेन सेम इन ऑल द केसेस बिकॉज इट इज स्लांट हाइट, सो इट्स इक्वल टू AC. व्हेन वील नेम इट, इट इज नेम्ड एज AC एंड इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर. तो जो सम करने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज चाहिए, हमने वो फाइंड आउट कर दी है, दैट इज P, B एंड H. P is BC equal to 7 centimeter. B is AB is equal to 24 centimeter and H is AC is equal to 25 centimeter. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन A की सेपरेटली और कॉस A की सेपरेटली. दोनों वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए हमें फॉर्मूला नोन होना जरूरी है जो कि हम बेसिक में कवर कर चुके हैं. साइन A, साइन हम अभी भूल जाते हैं कि यहाँ A है या B है. सिंपली साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P अपॉन H. और अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर A भी है, तो हम जब साइन A से ऑब्जर्वेशन हमारा कर रहे हैं तो P की वैल्यू जो है वो है BC और H की वैल्यू है वो है AC. व्हेन अब हमें प्लेस करना है वैल्यूज, BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू है 25. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन A? इट इज 7 अपॉन 25, राइट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस A, कॉस A की जब हम बात करेंगे, अभी हम भूल जाते हैं कि इसके साथ A है या B है. सिंपली कॉस का फॉर्मूला आप लिखिए, दैट इज B बाय H. नाउ वैल्यू ऑफ B व्हेन इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम A, वैल्यू ऑफ B इज बेस, दैट इज AB, एंड H which will always be the same one, that is AC. Now we'll place their values also. AB is 25 and AB is 24 centimeter and AC is 25. So the value of cos A is 24 upon 25. Here I have not written the units. As you can see, centimeter, because they have same units in numerator and denominator. Then we can cancel those units also. And ratio में अगर unit same होगी numerator और denominator की, तो उसे लिखें या ना लिखें, it's the same thing. So we have not written here the units. If you want, आप इस तरीके से सेंटीमीटर डिनोट भी कर सकते हैं और फिर उसे कैंसिलेशन करके भी दिखा सकते हैं. फॉर अ प्रॉपर स्टेप, नो प्रॉब्लम, आप एक स्टेप और इसमें इंक्रीज कर सकते हैं अपने कंप्लीट सोल्यूशन के लिए. तो इस तरीके से हमारे इस पूरे सम का हमने स्टेप 1 सॉल्व कर लिया है, जहां मैंने ABC ट्रायंगल को यूज किया है, H की वैल्यू फाइंड आउट करी है, A को अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाया है और साइन A और कॉस A की वैल्यू फाइंड आउट की है. इन द सेम मैनर हम
इसी के पार्ट सेकंड में साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे. बट इन दैट केस ऑल्सो द ट्राइंगल विल रिमेन सेम, द वैल्यू ऑफ एच विल रिमेन सेम. एच की वैल्यू आपने वंस फाइंड आउट कर ली है, इट विल रिमेन द सेम वेदर हम ए से ऑब्जर्वेशन करते हैं या हम सी से ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. नाउ हम हमारा ऑब्जर्वेशन करेंगे सी से. सेकेंड पार्ट जो है सेकेंड सेक्शन, उसमें आपको साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेपरेटली और कॉस सी की. बट मैं यहाँ एक अलग से सेक्शन बना लेती हूँ जहां हम सी से ऑब्जर्वेशन करेंगे और पी, बी और एच की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. राइट, अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया है सी. हम जब सी से ऑब्जर्व करते हैं, अब मैं थीटा जो है उसको ए से रिप्लेस करके उसे मैं सी पे प्लेस कर देती हूँ ताकि आपको ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा कन्वीनियंस रहे. जब हम सी से थीटा को प्लेस करके अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सी का जो ऑपोजिट साइड है वो बन जाता है ए बी, तो वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा. और एज आई सेड 90 डिग्री को होल्ड करे हुए परपेंडिकुलर के अलावा जो दूसरा साइड बच गया है वो बेस बी का पार्ट रोल प्ले करेगा यहाँ पर. तो जब मैं सी से ऑब्जर्व करती हूँ, सी पर थीटा को प्लेस करती हूँ, तो पी की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ नेम हो जाती है ए बी और उसकी वैल्यू हो जाती है 24 सेंटीमीटर. जो 90 डिग्री को होल्ड करे हुए पी के अलावा अदर रेस्ट पार्ट है वो है बी सी, उसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, जो कि स्मॉल बी दैट इज बेस का रोल प्ले करेगा. और एच जो है वो सेम है बोथ द केसेस में, whether the observation point is A or C, slant height will remain the same, don't get confused. तो वो सेम रहेगी जो हमने फाइंड आउट करी थी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज 25 सेंटीमीटर. तो सेकेंड सेक्शन के लिए दिस वन सेकेंड सेक्शन हमारे बेसिक रेडी है, P, B और H, जिन्हें हम यूज करके इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. हमारा फर्स्ट जो क्वांटिटी है, रेशियो है, वो है साइन है. तो साइन का सिंपल फॉर्मूला P बाई एच. अब क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट C हो चुका है, P की वैल्यू फ्रॉम C ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज ए बी एंड फॉर H इट इज ए सी. तो साइन C जो है ए बी की जगह मैं प्लेस कर दूंगी 24 सेंटीमीटर को. सेंटीमीटर को कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम 24 को डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं. और H की वैल्यू 25. तो इस तरीके से साइन सी की वैल्यू हो गई 24/25, रेशियो में है, सो यूनिट मेंशन करना नेसेसरी नहीं है. कॉस सी, कॉस जो है उसका बेसिक फॉर्मूला हो गया b बाय एच. सी से जब हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखा तो सी से ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखने पर b की वैल्यू हो गई बी सी. एच विल रिमेन द सेम इन ऑल द केसेस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो वैल्यू ऑफ बी सी इज 7 एंड वैल्यू ऑफ AC is 25. So the value of cos C is 7/25. So this was the answer for the second section of our question number 1. So now you now you understood what is the basic concept. First find out that value which is missing. P, B, H 3 quantities होगी इन तरीके के सम्स में, जिसमें से हमेशा एक मिसिंग रहेगा, या तो P मिसिंग रहेगा या B मिसिंग रहेगा या H मिसिंग रहेगा. उन तीनों में से जो भी मिसिंग है उसे हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो रेशियो फॉर्मूला है उन्हें अप्लाई करके आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है. वन थिंग जो नोटिस आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है वो ये है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है. अगर यहाँ ए है तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए बन जाता है, जिससे पीबीएच की वैल्यू वरी करती है. और जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज कर दिया, जैसे कि सेक्शन सी में सी हो गया था, सो वहां से वापस से जो हमारे पी और बी की वैल्यू मेनली है वो चेंज हो जाएगी, स्विच करेगी. तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हमेशा याद रखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो.